کہیں گے کہ سنو ہماری بات، ویب سائٹس موجود ہیں، ڈبیٹس موجود ہیں، یوٹیوب چینلز موجود ہیں، ادھر ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. تو جی مفتی صاحب سادہ محترم کیجیے گا بات. جی کون ہیں جناب؟ خود بات کریں جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. مفتی السلام. صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ شکر. مفتی صاحب، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، مجھے بھی اتنا جو ہے، کیونکہ میں کسی باقاعدہ مدرسے کا یا دین کا طالب علم نہیں ہوں، نہ ہی میں مفتی ہوں، نہ علامہ ہوں. تو میری کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں کچھ مرزائیوں کی ویب سائٹ پہ جا کے بیٹھا ہوں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے کوسچنز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں مسلمان مانو. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور تو مطلب پیمانہ نہیں ہے کسی کو، وہ مطلب کہ آپ کس طرح سے ہمیں جو ہے کافر کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے جی کلمہ گو کو مسلمان کہنا ہی کہنا ہے؟ یعنی کلمہ گو جب ہوگا تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، مسلمان ہی کہنا ہے. یہ ایک سوال ہے نا. صحیح ہے. جو آپ کو یہ کہتا ہے نا جی دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی تو لہذا مسلمان ہے، تو اس سے یہ سوال آپ نے کرنا ہے کہ دیکھیے یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کلمہ گو جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ صحیح ہے. تو اس کی آپ مجھے ہیلو، کیا ضروری کیا ہے ہمارے لیے؟ آواز آپ کی کٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے. مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ کلمہ اسلام میں تو داخل ہونے کے لیے کلمہ ہی ہے، کلمہ کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اب وہ وہی کہتے ہیں نا، کہ کلمہ میں نے پڑھ لیا، اب باقی میرے اعمال کا میں ذمہ دار ہوں. یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ چیزیں جو ہے نا جو وہ کہتے ہیں، جی اگر تو آپ کہتے ہوتے تو میں یہ سوال آپ سے کرتا، کیونکہ آپ کسی کا سوال لے کے آئے ہیں نا. ایسا ہی ہے نا، جی میں ایسا ہی کسی ہے نا، کا آپ سوال کسی اس کا وجہ سے سوال لے لے کے کے آئے آئے ہیں مفتی نا. صاحب معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر تو آپ سوال کر رہے ہوتے، سائل آپ ہوتے، تو پھر میں آپ سے ڈسکشن کرتا اور آپ سے پوچھتا کہ بھائی کہاں پہ لکھا ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے یا حدیث ہے کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ دیکھو جی کلمہ کو جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور ٹھیک ہے. کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے. میرا اگر تو یہ بیسیکلی سوال آپ دوسرا بھی کا وہی ہے تھا تو پھر کہ ہم سے وہ یہی اب بات کر لیں. جی بولیں. جیک اسپیرو صاحب مائک میوٹ کریں آپ، مفتی صاحب کی بات مکمل ہونے دیں. تو مفتی صاحب یہ بیسیکلی ڈسکشن کر رہے ہیں، اس میں مائک تو یہ ہے کہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے یا کچھ مسئلہ ہے کہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو پھر بیچ میں آپ بول پڑتے ہیں، تو وائس لگتا ہے کوئی تھوڑی سی اسکپ ہو رہی ہے یا ڈیلے ہو رہی ہے. اچھا گزارش یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ آپ کا سوال ہے تو آپ فرمائیں کہ یہ میرا سوال ہے تو پھر میں آپ سے ڈسکشن کرتا ہوں. لیکن اگر تو کسی کا سوال ہے تو اس کو یہ جواب میں نے دے دیا ہے، آپ یہ میری بات اس کو جا کے بتا دیں کہ دیکھو جی مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے اور کلمہ گو مسلمان ہوتا ہی ہوتا ہے. میں نے بات کر لی، اب آپ بات کر سکتے ہیں. مفتی صاحب یہی چیز میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے سامنے کافی سارے لوگوں سے انہوں نے یہی کہا کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اب ہم مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ہے. ہمارے لوگوں کے پاس، ایون کہ میرے پاس بھی اتنا نالج نہیں ہے کہ میں جو ہے انہیں جواب دے سکوں. تو میں یہ اپنی رہنمائی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اگلے بندے کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، کیونکہ میں وہی جس نا جگہ میں رہتا کہہ رہا ہوں آپ نے وہاں سیٹسفائی پہ اس طریقے مرزائیوں سے کا گڑھ کرنا ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کریں نا جا کے. جب وہ یہ سوال آپ اس کا جواب لے آئیں گے نا تو پھر آپ بتائیے گا اور تشریف لائیے گا، یا اس بندے کو آپ میرے سامنے لے کے آئیں جس کے یہ سوالات ہیں. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے.
ठीक हो गया मुफ्ती साहब, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। किस मौजू पे गुफ्तगू जारी है जी? हयातो वफात मसीह से मुराद मिर्ज़ा गुलाम हयातो वफात मसीह से मिर्ज़ा कादियानी का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ये मौजू है भाई। आओ कादियानियों। जी उस्ताद मोहतरम, जी जी ज़िया रसूल भाई आए थे और माशाल्लाह एक वो लेक्चर दे के गए इसी के ऊपर जी जी कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो पहले जो इल्हाम की बुनियाद पर हयात ईसा लिखे और कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही दोबारा तशरीफ लाएंगे, तो 12 साल वो उसको समझ ही नहीं आई। तो जिसको वही इलाही कुरान की समझ नहीं आई, तो जो उसको बाद में इल्हाम हो रहा है उसको हम कैसे सच्चा मान लें? तो इसके ऊपर उन्होंने हवाला जात से माशाल्लाह एक गुफ्तगू फरमाई थी। तो अभी आप तशरीफ लाए हैं तो ये मौजू है, तो कादियानियों से भी उन्होंने नीचे बैठे हैं कादियानी, उन्होंने सुना इसको, तो हम कहते हैं कि वो आए तशरीफ लाएं और बात करें इस मौजू के ऊपर। ये अच्छा मुख्तसर से ये विराट पर ये चल रहा था सर। बिल्कुल ठीक हो। ये हेडलाइंस कौन है? ये मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं तैमूर ही- तैमूर है आप हैं? माइक म्यूट हो गया। ये मुझे वॉइस कटती हुई महसूस हो रही है या सबकी महसूस हो रही है? जी वॉइस कटती हुई। नहीं मुफ्ती साहब, मुझे फ़ोन आया था बीच में, मैंने अभी कट किया, अच्छा मेरा प्रॉब्लम था। जी कौन जनाब? आप कोई तारुफ नहीं आपने करवाया, चले गए। अच्छा वो लिखा ये था हेडलाइन जूनियर सीनियर दियूस। अच्छा खान साहिब आए हैं जी जनाब। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब फरमाइए। सलाम करके आप खामोश हो गए हैं। मैं क्या, आप इतने बड़ी हस्ती बैठे हुए हैं सर, आपके सामने हमारी क्या मजाल है कुछ बोल सकें? आप बोलते हैं हम लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं पीछे पीछे भागते हैं आपके, कि हाँ कोई अल्लाह पाक जो ना और इल्म अता कर दे आपके तुफैल। आमीन। जी तो खान साहब कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो फिर नीचे बैठ के आप सिमात फरमाएं ताकि किसी कादियानी या मर्दई को हम कॉल पर उचक सकें। जी जी बेशक बेशक, ठीक है, मुझे नीचे उतार दीजिए। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा ये खलीफा साहब कौन है जनाब? क्या खलीफा मसरूर साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अच्छा वालेकुम। मुफ्ती साहब, मैं तो बस इधर आता हूँ आपकी बराड़ के ऊपर, तो मुझे तो एज ए खलीफा हो के एक जमात का तो इतना मेरे इल्म में नहीं है बातें। मैं तो इधर आता हूँ तो मुझे तो आप अपना स्टूडेंट बना लें ताकि मुझे भी थोड़ा सा अक्ल शऊर इल्म आ जाए। तो मैं तो नुकरे ला के बैठ के आपसे सीख रहा हूँ। नहीं, खलीफा मसरूर साहब को पहले ना मौलवी से रजूलियत की ताकत का इजहार करवाना पड़ेगा, फिर जाके वो कहीं मेरे शागिर्द बन सकते हैं। हाँ जी, ये हाशिर सिद्धू साहब तशरीफ लाए हैं। हेलो, कौन है जनाब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल भी ये सारा कुछ ही है, ते सिर्फ मैं एक गल करके ते मैं फले तोड़ जाऊंगा, ठीक है? जी 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 जनाब। मुफ्ती मुबशर साहब, साहिल कालू साहब, अली दा मलंग भाई और जिन्ने भी दोस्त ने खत्म नबूवत दे मुजाहिद ने, उन्हां नूं दिल दियां अथाह गराइयां तो मेरा सलाम। उन्हां दे वालिदैन दियां जुतियां दा सदका उन्हां नूं सलाम। ते खत्म नबूवत ते पहरा देन वास्ते सिर्फ हलाली काम करदे ने, हरामियां दा इन्हां नाल कोई तल्लक नहीं। जिंदाबाद खत्म ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ते मिर्जा खंजीर कादियानी कुत्ता लानती मुर्दाबाद, और क़यामत तक उहदे ते लानत। बेशक बेशक बेशक।
अच्छा, बड़ी तस्वीर कर सकते हैं आप उस्मान भाई? नहीं उस्ताद मोहतरम। यार वो आजकल पैगाम दे रहा हूँ मैं, तो चलो फिर ऑडियो ही सुना देते हैं, क्या ख्याल है? जी उस्ताद मोहतरम। ये सुने भाई पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। मोहतरम दोस्तों, एक ऐलान है, आप इस पर तवज्जो दीजिएगा। और ये ऐलान हमारे जो ख़त्म नबूवत से प्यार मोहब्बत रखने वाले हमारे दर्दमंद मुसलमान हैं, उनके लिए ये पैगाम है। देखें, ये हमारी किताब आई थी कादियानी कलमा, इसको आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद है इसकी PDF। हार्ड कापी इसकी जो है ना वो तो अभी हमारे पास नहीं है, इसको भी छपवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद इसकी कुछ कापियाँ छप जाएँ तो। लेकिन ये है कि कादियानी जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसके दो जुज़ हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और एक है मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो मुहम्मद रसूलुल्लाह है उसको इस किताब के अंदर हमने ड्रेस की है। अब रही बात ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो यानी कलमे का जो पहला हिस्सा है वो है तौहीद और दूसरा हिस्सा जो है वो है रिसालत। तो रिसालत के ऊपर तो हमने यहाँ इस किताब में ड्रेस किया था, जबकि हमने वादा किया था कि जो तौहीद है कलमा का पहला हिस्सा है उसको बाद में हम ड्रेस करेंगे इंशाल्लाह और मुफस्सल इसके ऊपर किताब लिखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब हमने लिख दी है और किताब का नाम रखा है कादियानी तौहीद। इसका नाम है कादियानी कलमा, इसको आप समझ लें कि कादियानी रिसालत। और जो अब किताब आ रही है वो है कादियानी तौहीद। तो जितने तकरीबन इसके सफ़ात हैं उसके भी उतने ही सफ़ात बने हैं। और जो तरीका हमने इसमें इख्तियार किया था कि कादियानी असल किताबों के जो स्कैन है वो आखिर में लगाए थे, तो उस किताब के अंदर भी हमने आखिर में तमाम सफ़ात लगा दी हैं। किताब बिल्कुल रेडी है, तो अब उसको छपवाएंगे। कादियानी चूँकि कहते हैं जी कलमा तो हम तुम्हारे जैसे ही पढ़ते हैं, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे ही हम पढ़ते हैं। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये कलमा वैसा नहीं पढ़ते जैसा ये बताती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद भी ये मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं। यानी अल्लाह से मुराद भी मिर्ज़ा कादियानी और मोहम्मद से मुराद भी मिर्ज़ा कादियानी। कादियानी कुतुब के अंदर हज़ारों हवाला जात है, बिखरे पड़े हैं। इंशाल्लाह जो आप पढ़ेंगे हमारी नई किताब कादियानी तौहीद के अंदर, तो मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि इस किताब को छपवाइए। तो जिन्होंने ताउन करना हो, वो किताब छापनी हो, तो वो हमसे रब्ता कर लें। वीडियो के आखिर पर आपको मैसेज दिखाई देगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर लीजिएगा, जिसके अंदर जितनी हिम्मत हो। मैं ये नहीं कहता कि एक बंदा इस किताब को छपवा दे, 2 बंदे मिलकर छपवा दें, 3 मिलकर छपवा दें, 10 बंदे मिलकर छपवा दें। तो जितना जिसके अंदर हिम्मत है या जितनी जिसकी जेब इजाज़त देती है। महंगाई का दौर है, लेकिन साथ ये काम भी तो दीन के काम है, ये करने तो है ना। कदमे दरमे सुखने ये काम चलते ही रहने हैं, ये क़यामत तक ऐसे ही चलना है। तो हमारा काम था समझ लें कि कदमे या सुख ने हमने खिदमत की, दरमे आप लोगों ने करनी है। हमारा काम था तहरीर करना, उलमा का काम होता है तहरीर करना, तहकीक करना। तो आगे फिर मुखय्यर हजरात का काम होता है उसको छपवा के नशर करना और लोगों तक उस पैगाम को फैलाना। तो मैं इंतज़ार करता हूँ जनाब, इस किताब को आप हजरात ने लाजमी छपवाना है और छपवा के जल्द अज जल्द मार्केट में लाना है। फ्री तकसीम करवाएं, ठीक है जी। तो आप जो छपवाना चाहते हैं, जो ताउन करना चाहते हैं, तो वो आप वीडियो के आखिर पर राब्ता नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप राब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। क्यों आसफ भाई?
उस्ताद मोहतरम जी, उस्ताद मैसेज समझ आ गए? जी 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 बिल्कुल उस्ताद मोहतरम। इसको अपने अल्फाज में बयान करें, क्या मैसेज मैंने दी? उस्ताद मोहतरम यही जो किताब जो एक हिस्सा जिसका आपने वादा फरमाया था तौहीद के मुतल्लिक, उस वो जो है वो हिसाब जो है वो आपने उस पर मेहनत की तौहीद है नहीं, और सिर्फ तहरीर तौहीद फरमा नहीं, दी है। जी सिर्फ जी जी तौहीद नहीं, कादियानी कौन सी तौहीद को मानती है? हाँ जी कादियानी बिल्कुल तौहीद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अब वो किताब जो है वो तहरीर हो चुकी है और अब उसकी जो है वो इशाअत का वक़्त है। तो यह है कि सारे साथी मिल के जो है ना उसके अंदर हिस्सा डालें ताकि जो है वो उसको जो आवाम तक जो है ना उसको पहुँचाया जा सके। बिल्कुल। तो पहले तो आप ही इब्तदा कर दें, इसके अंदर आप हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह? उस्ताद मोहतरम इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा। जी जी, मुझे यही आपसे उम्मीद थी इंशाल्लाह अज़्ज़ल। उस्मान भाई आप भी हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाल्लाह से इंशाल्लाह। पहले तो वो कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले घर से बात शुरू होती है तो आंधी गुआंढियों से बाद में बात की जाती है। जी काशिफ भाई आप ही हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह? काशिफ भाई, काशिफ भाई जॉब पे थे तो कह रहे थे मैं मसरूफ हूँ, इसलिए वो जरा मसरूफ होंगे जी जी ठीक हो गया। बगदादी भाई आप भी हमारे खत्म नबूवत फोरम का हिस्सा हैं? माशाल्लाह लब्बैक जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस ठीक हो गया। असल में एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। सदका जारिया से मुराद ये होती है कि आप सोए भी होंगे ना तो आपकी नेकियों का मीटर चल रहा हो। बिलफर्ज आप रात 10 बजे सो गए, कोई शख्स ये किताब 12 बजे पढ़ता है, रात के 1 बजे पढ़ता है, 2 बजे पढ़ता है, उसको एक बात भी समझ आ गई, उसका अकीदा सुधर गया, उसका सवाब आपको हो रहा है, हालांकि आप सोए हुए हैं। आप फोत हो जाते हैं या बिस्तरे मर्ग पर होते हैं या हालते मर्ज में होते हैं, लेकिन इसका स्वाब जो है ना वो आपके लिए जारी हो। मुसलसल जब तक किताब पढ़ी जाती रहनी है, जब तक वो लाइब्रेरी में रहेगी, जब तक लोग उससे इस्तेफादा करेंगे, जब तक हो सकता है कि एक बंदा भी अगर मुसलमान हो गया, कोई कादियानी, उसको बात समझ आ गई कि देखो जी ये मैं तो पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा, एक बंदा, सिर्फ एक, छोड़ दें, हमने पूरी कादियानियत को मुसलमान करना है, छोड़ दें, हम पूरे जग को रोशन नहीं कर सकते, सिर्फ अपने हिस्से का एक दिया तो जलाए ना, बकाया अल्लाह की सुपुर्द है। सिर्फ एक बंदा मुसलमान अगर हो गया ना तो यकीन मानिए आपने सब कुछ खरीद लिया। यही दर्द रख के मैं किताबें लिखता हूं और यही दर्द मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि जो छपवाएंगे। मेरा भी दर्द यही है कि मुबशर शाह कोई मसला नहीं, तेरी रातों की नींदें हराम हो रही हैं, तू अपने बड़े ज़रूरी काम छोड़ के ये तहकीकात करता है और किताबें लिखता है, हालांकि मुझे किसी से कोई पैसे नहीं मिलते इस काम के, लेकिन दर्द सिर्फ यही है कि हजूर की उम्मत जो है ना वो मुसलमान हो जाए, उम्मत दावत, और वो जन्नत में चले जाए। ये उम्मत दावत जो है ना ये किसी तरीके से मुसलमान हो जाए। तो गुजारिश ये है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए ना पीछे एक बड़े बड़े रईस खड़े थे, हजारों दिरहम दिनार लेके, पीछे खड़ी थी वो माई, उसके हाथ में एक या चंद खोटे सिक्के थे। एक शख्स उसके पास आया, उसके फटे पुराने कपड़े देख के कहने लगा, माई साहबा किधर आई हो? कहने लगी कि मैं ना यूसुफ को खरीदने के लिए आई हूँ।
اس نے کہا کتنے پیسہ کتنا مال و متا لے کے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ چند سکے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہنے لگا مائی صاحبہ یہ تو چند سکے ہیں اور وہ بھی کھوٹے ہیں، تو یوسف کو خریدنے کے لیے تو یہاں درہم اور دینار لے کے کھڑے ہیں رئیس زادے، تو کیسے یوسف کو خریدے گی؟ تو مائی صاحبہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی مجھے بھی پتہ ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، میری اوقات اتنی نہیں ہے، لیکن کم از کم جب قیامت کے دن آواز لگے گی کہ یوسف کو، نبی اللہ کو، اللہ کے محبوب کو خریدنے والے کون کون تھے، آؤ سارے جنت میں چلے جاؤ، تو چلو میرا بھی بیچ میں نام تو آ جائے گا نا۔ ہم نہیں شہیدوں میں نام نہیں لکھوا سکتے، چلو ایک تھوڑا سا خون کا قطرہ اور ایک چیرا لگوا کے اور انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والے لوگ ہیں۔ ابھی یہ ایک میسج میں نے پڑھا ہے 100 ریال جی میری طرف سے، بظاہر یہ بہت ایک ہلکی پھلکی ایک یہ ان کا وعدہ ہے یا ان کی خدمت ہے، لیکن اللہ کے حضور اس کا کیا مقام ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال یہ پہلی بھی میری کئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بس وہ چھپی ہوئی ہیں، چھپی نہیں ہے ابھی تک۔ تو اس وقت بھی میں نے جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو میں دوستوں کو کہہ دیتا ہوں، میرا کام ہے بھائی کہنا، کوئی سنے نہ سنے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ پہلے بھی میں نے کہا بھائی کہ میں کرنا کتاب چھپ گئی ہے، رابطہ ہی نہیں کرتے کوئی، بس کیا کرے۔ یہی قوم ہماری، یقین جانے یہ ملنگوں کے درباروں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، یہ دم درودوں والوں کو کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، یہی قوم ہے۔ جی شاہ جی تھلے 100 ایسے USA آیا ہے۔ جی اللہ پاک ان کی نیت کو جانتا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اگر ہو سکتا ہے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں دے دیں، یا یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کریے جی، نوٹ کریں۔ ایک منٹ صبر مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب 0324 0324 744 744 8814 8814۔ پاکستان کا کوڈ پیچھے لگا لیجئے گا۔ اچھا پاکستان کا کوڈ بھی لگاؤں؟ ہاں جی 0092 92۔ یہ 0324 سے آگے لگاؤں؟ ٹھیک ہے نہیں نا، اب دوبارہ شروع سے ذرا سنیں۔ جی 0092 اوکے جی 0092 324 324 744 744 8814۔ 8814۔ جی وہ بیچ میں جب پاکستان والا کوئی ہوگا نا تو وہ 3 سے پہلے 0 لگائے گا، اور اگر بیرون ممالک کا ٹھیک ہے۔ میں خود بھی پاکستان سے ہوں، لیکن میں ابھی نیدرلینڈ میں ہوں۔ اچھا جی ہاں اچھا، اب میں تھوڑا سا خان صاحب عرض کروں گا، اور ذرا مائک میوٹ کریے گا میں، جی تاکہ دوستوں کو دعوت دے دوں۔ تو گزارا یہ ہے کہ صاحبان، سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ کتاب و قلم ہے۔ کسی ایک طالب علم کو آپ کتاب لے کے دیتے ہیں نا، چھوٹی سی کتاب، ایک چھوٹا سا قلم ہی لے کے دے دیں، بلکہ یہ کیا کریں، اپنی روٹین میں یہ شامل رکھیں
بعض لوگ کا ذہن ہوتا ہے لنگر بنا کے تقسیم کرنے کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا، وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے، لیکن وہ لنگر جو ہے وقتی طور پہ ہے. جیسے الحمدللہ میں بھی مدینہ شریف میں وہ حرم شریف میں چائے کا لنگر کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا رہا ہوں، یا اور بھی کبھی کوئی چیز تقسیم کر دی. ہمارے یہ بغدادی بھائی نیچے بیٹھے ہیں، یہ بھی لنگر کرتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے وقتی طور پہ، یعنی کھانا کھایا یا چائے پی تو ڈکار آیا تو بس گیا. اسی طریقے سے آپ نے کوئی فرض کر لیں کوئی شادی بچی کی کروا دی، وہ بھی بہت بڑا ایک کمال صدقہ ہے، لیکن وہ بھی ایک وقتی طور پہ ہے، اور وہ بھی ایک فرد کے لیے ہے، یعنی ایک گھر کو آپ نے آباد کی ہے، ایک بچی اور بچے کا ایمان بچایا ہے آپ نے. اچھا اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے جائیں جتنے بھی صدقات ہو رہے ہیں، صدقات نافلہ یا صدقات واجبہ بھی، تو وہ جس جگہ اس کا مصرف ہے نا اس پہ ذرا غور کر لیں کہ آیا یہ جس مصرف میں لگا رہا ہوں کیا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں. بس یہ آپ کو درد دینا ہے کہ یہ والا جو کام ہے نا یہ انتہائی صدقہ جاریہ ہے. وہ ہمارے مصنفین اسلام کے رکھوالے 1400 سال کے اندر کتاب کتنی لکھی گئی ہے، پوری زندگیاں وقف کر دیں ہمارے علماء نے کتاب و قلم کے اندر. کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس لکھتے رہے، تحقیقات کرتے رہتے تھے. اتنی موٹی کتابیں، 100 جلدوں کے اوپر کتابیں. تو ان سے آج دنیا استفادہ کاری اور قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی، اور لوگوں کے ایمان سدھر رہے ہیں. تو کتاب کی بہت اہمیت ہے. اللہ کرے ہمیں کوئی ایسے چند دوست مل جائیں جو ہمیں خود کہیں شاہ جی فلاں موضوع پہ لکھو، میں چھپواؤں گا. یقین مانیے مجھے آج تک نہیں کوئی ایسا بندہ ملا. لیکن پچھلی کتابیں جو میں نے چھپی ہیں میری، تو وہ ماشاءاللہ جن دوستوں نے چھپوائی وہ گم نام لوگ ہیں، اور ہمارا پورا کام ہی گم نام ہوتا ہے الحمدللہ. تو وہ اجر تو اللہ نے دینا، مفتی مبشر شاہ نے تو نہیں دینا. میں زیادہ سے زیادہ کیا کروں گا بھائی، میں تعریف کر دوں گا جی فلاں بندے نے یہ کی ہے، اجر تو نہیں میں نے دینا. فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تمہاری آنے والی جو بلائیں ہیں نا اس صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے. تمہارے گھر میں مریض ہے، اتنے مریض ہیں، او بھائی ان مرضوں کے اوپر تم لاکھوں روپیہ لگا رہے ہو. آج مجھے بلکہ کل ایک فون آیا ہے، دوست ہے، وہ کہہ رہے ہیں شاہ جی وہ پتہ نہیں کس کا وہ جگر کا آپریشن ہے تو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مہربانی کریں مجھے چاہیے. تو بھائی لاکھوں روپیہ آپ لوگوں کے مرضوں کے اوپر لگ رہا ہے. یہی تم اگر صدقات نکالتے ہوتے تمہارے بچوں کا سر کا صدقہ ہو جاتا، تمہاری بیوی بچوں اور والدین اور بہن اور بھائیوں اور تمہارے گھر کا یہ صدقہ ہو جاتا، تمہاری جو گاڑی ہے جس گاڑی پہ بیٹھتے اس کا صدقہ ہو جاتا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حضور نے جب فرما دیا ہے، حضور کی زبان کے اوپر تو یقین ہے کہ نہیں، مولوی کی زبان پہ یقین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. مجھے میسج آتے ہی رہتے ہیں جی میرے کاغذات کے مسئلے بنے ہیں، میں فلاں ملک میں رہتا ہوں، بڑے مسئلے ہیں شاہ جی، بڑے مسئلے، دعا کرو شاہ جی. وہ صدقہ کڈو جی شاہ جی، بھائی صاحب صدقہ کڈو. تسی تانوں پھر شاہ جی نو دعاواں کہن دی لوڑ نہیں پینی، پھر وہ آپ ہی کم سدھری جانے نے آپ ہی. وہ جہدے نام دا صدقہ کڈیا جنہوں نو پتہ ہے، وہ سب جانتا، دلاں دے بھیت بھی جانتا ہے. اس نے تو پہلے کہا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کون اچھے عمل کرتا ہے. بیماری تمہارے اوپر لائیں گے
और फिर देखेंगे ये सदका करता है कि नहीं। अब तुम्हारे ऊपर परेशानियां और दुख और तकलीफें और तुम्हें केसों के अंदर फंसाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमात होंगे, तुम्हारे कागजात नहीं बनेंगे, तो ये सारे वो आजमाइशें हैं ना। लेकिन अब देखेंगे तुम अच्छे अमल करते हो कि नहीं। तो अच्छा अमल यही है भाई, तुम अगर गुर्बत में हो ना तो गुर्बत का इलाज हमारे उलमा बताते हैं, बेहतरीन इलाज ये है कि सदका करो। जिहाद का ऐलान हो गया, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद की तैयारी हो रही है, तलवारें खरीदनी है, तीर खरीदने हैं, घोड़े खरीदने हैं, जीरें खरीदनी है, जंगी सामान खरीदना है। मुसलमानों हिस्सा डालो, चंदा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बज़ाहिर वो गरीब थे, अपने घर का सारा सामान जो है ना हजूर की बारगाह में पेश कर दिया। यहां तक कि अपना कुर्ता जो था, कुर्ते में जो बटन लगे हुए थे, बटन उतार के भी वो सदका कर दिया और वहां पे कांटे लगा लिए, कांटे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर घर में किसको छोड़ के आए हो, क्या छोड़ के आए हो, कोई बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं? फरमाने लगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आए हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपना आधा माल लेके आए। बज़ाहिर उनका माल बहुत ज्यादा था, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिए हुए माल से बहुत ज्यादा माल था, लेकिन फरमाया कि अबू बकर नंबर ले गया है भाई, इसने जन्नत खरीद ली है, मालक हो गया जन्नत का ये। अल्लाहु अकबर। अबे वो जंगें खत्म हो गई हैं, अब जंग जो है ये किताबो कलम की जंग है, नजरियात की जंग चल रही है। अभी हम मैदाने जंग में हैं, ये अभी जो बराड़ पे बैठे ये जंग लड़ रहे हैं, ये सोशल मीडिया वार जारी है। अभी नजरियात और अकायद और नजरियात की जंग जारी है। तो ये कैसे जीतोगे भाई, हार जाओगे। वो तुम्हारा दुश्मन जो है वो रोजाना का अखबार निकाल रहा है, अल फजल और दीगर लिटरेचर निकाल रहा है, उनके महाना रसाले हैं, उनके हफ्ते रोजा रसाले हैं, वो किताबों के वो जितनी तशहीर कर रहे हैं, वो यूरोप के अंदर जाके देखो, चौकों के अंदर खड़े होके वो छोटे छोटे वो रसाले और जो भी तकसीम वो करते हैं, लोगों के अकायद और नज़रियात खराब कर रहे हैं। बस तुम लोग ना बस आराम से ना तारीफें किया करो बस। शाह जी बड़ी गल है जी, शाह जी बड़ा काम शाह जी आप कर रहे हैं जी, मुफ्ती साहब बड़े बल्ले है भाई बल्ले। शाह जी को तुम्हारी तारीफों की जरूरत है। तारीफें भाई जो करने वाला है वो हमारे मालक हैं, वो हमारी तारीफें कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अपने काम पे लगाया है। जब शाह जी कोई काम कहते हैं वो होता नहीं है यार, तो कम अज कम तवज्जो दीजिए और किताबें छपवाने की तरफ तवज्जो करिए। यकीन जानिए दिल खून के आंसू होता है। मेरा तो इतना दिल करता है, इतना मन करता है, इनका रोजनामा अल फजल आता है तो मैं उसका रोजाना का रोजाना रद्द करूं। और हमारा भी एक जरीदा ऐसा होना चाहिए, रोजाना की रोजाना ही ठुकाई करे। लेकिन भाई इसके लिए कसीर रकम चाहिए और एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए। दोस्त वजह ही नहीं देते, इधर उधर के इतने काम करेंगे, इतने करेंगे, लेकिन जब किताबों की इशाअत की बारी आती है तो बस अल्लाह पाक ही है। हम क्या कर सकते हैं भाई। हम ज्यादा से ज्यादा या तो लिख सकते हैं या ये एक लेक्चर दे सकते हैं, जो अभी लेक्चर में दे रहा हूं। ये 2 फरीजे मैंने सर अंजाम दे दिए हैं।
एक लिखने का फरीज़ा और एक लेक्चर देने का फरीज़ा। बकाया मुकल्लिबुल क़ुलूब तो अल्लाह पाक की ज़ात है और उसका काम है उसने ही करना है। वो खुद ही अपने बंदों के जो उसके चुनिंदा बंदे हैं, जो उसके महबूब हैं, उनके दिलों के अंदर डाल देगा, वो खुद ही करेंगे। हमारा काम तो नहीं है। हम तो सुरखरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और कल अगर सवाल होगा तो हम कहेंगे हमने तो किया, अगर नहीं हुआ तो क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर दोस्त इसको अपना फर्ज समझे भाई, किसी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, जरूरी तो नहीं मैं नाम लूं यहाँ पे। अब यहाँ पे तो 35 बंदे बैठे हैं, इनके अंदर 20 होंगे कादियानी, मरज़ई, एथीएस, दैर, ये इधर उधर के होंगे। चलो 15 बंदे तो कोई मुसलमान होंगे कि नहीं यार। यार 1-1 रुपया भी तुम दो, 15 रुपये हो जाते हैं माशाल्लाह। कुछ ना करने से, मेरे पीरो मुर्शद इरशाद फरमाते, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, नहीं तो ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। अभी मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो लॉन्च की है, तो एक बहुत गरीब, मैं उनको जानता हूँ, जाती तौर पे जानता हूँ, गरीब सा आदमी है। उसने कहा शाह जी अपना ना जायज़ कैश अकाउंट दीजिएगा। मैंने कहा ये इसी नंबर के ऊपर मेरा जायज़ कैश भी है, ये 0324 वाले नंबर के ऊपर। तो कहने लगा किताब की इशाअत के लिए मैं कुछ भेजना चाहता हूँ। 1000 रुपया उन्होंने भेजा। बज़ाहिर ये 1000 कुछ भी नहीं है, यानी वो एक आटे में एक नमक नहीं होता, वो भी नहीं है। अब किताब तकरीबन कोई 3-3.5 लाख रुपए की छप रही है, लेकिन भाई उसने तो काम कर गया ना, वो तो सब कुछ वो कर गया, वो उसने सब कुछ खरीद लिया। अजर तो अल्लाह ने देना है ना, नियत अल्लाह जानता है, मैं तो नहीं जानता। तो ये बातें हैं, ये बातें तो छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं भाई। हाँ तवज्जो दिया करें यार। जब आजिज़ कभी कह दे कि कोई किताब आ गई है भाई तो छुपवाओ, अब छुपवाती नहीं है यार। तफसीरे खत्मे नबूवत लिखी है, उसकी पहली जिल्द नहीं छपी अभी तक। यार की यार करिए, फिर बंदा ना पता की है। मुसन्निफ एक शायर होता है ना, शायर का जो एक शेर होता है उसकी इतनी ख्वाहिश होती है कि ये ना किसी मजलिस में पढ़ा जाए, मैं लोगों को सुनाऊं और लोग वाह वाह करें, वाह वाह करें, वाह 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 वाह। अर्ज़े मुसलसल दोबारा सुनाइए, क्योंकि वो शायर है भाई, वो चाहता है, वो उसकी औलाद है, वो एक मां की मानिंद है। इसी तरीके से मुसन्निफीन का भी ये मामला होता है। इसको पेश गोई कहते हैं। अच्छा एक मिनट रुके, आपके सनाउल्लाह रस्तरी, हाँ आपके सनाउल्लाह रस्तरी साहब, लेकिन ये कहते हैं कि मिर्जा, एक मिनट रुके, मिर्जा साहब कहते हैं कि मिर्जा साहब ने लिखा कि ये दुआ शाया की किसी इल्हामी ने कि सच्चे की जिंदगी में झूठा मर जाएगा। वो कहने हैं कि ये दुआ शाया। अब ये जो अल्फाज आपने पेश किए हैं, ये तो पेश गोई बता रहे हो आप, वहां वो ये कह रहे हैं कि दुआ में ये अल्फाज दाखिल किए हैं कि सच्ची की जिंदगी में झूठा मर जाएगा। ये तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह दुआ होती है जिस तरह आप कहते हो ये दुआ है, क्या ये दुआई अल्फाज हैं? इसमें कौन कर रहा है सवाल? कौन कर रहा है सवाल? जो आपके काबरीन से वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अल्फाज दुआया हैं? है सवाल। तो सनाउल्लाह मरसरी साहब ने मतलब सवाल पूछा था वो। हाँ क्या बताओ, कभी मुल्हिम ने इस तरह दुआ की? इन लफ्जों से दुआ होती है? किन लफ्जों से? जो लफ्ज उन्होंने लिखे हैं। कौन से लफ्ज लिखे हैं? सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। ये बच्चों जैसी बातें ना करें। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो दजलो फरेब का मुजाहिरा आप यहाँ कर रहे हैं ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ।
भाई ये बात इब्तदा में हुई थी, मैंने आपको पूछा था पेशगोई के अल्फाज हैं, आपने कहा पेशगोई के अल्फाज नहीं है, मफहूम है। एक सेकंड होल्ड रख। जी करो 10 minuti। अच्छा, मैंने आपको पूछा कि उन्होंने पेशगोई के अल्फाज लिखे, आपने कहा नहीं मफहूम है। इसी तरह से मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर मिर्जा साहब की पेशगोई का मफहूम मौजूद है, अल्फाज तो उन्होंने नहीं कहे। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो कोई पेशगोई की ही नहीं। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो सुन्नतुल्लाह के मुताबिक एक बात बयान की है कि ऐसा होता है। ये क्या है? अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि एक अक्सर लाइन पढ़ रहे हो ना यहूदियों की तरह, एक लाइन पढ़ रहे हो ना यहूदियों की तरह, मैं कह रहा हूँ आगे पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो आगे? भाई मैं मुअल्लम साहब पूरा इश्तिहार पढ़ा है मैंने, वो पूरा इश्तिहार पढ़ा है। तुम एक लाइन पढ़ कर कह रहे हो जी लो जी पेशगोई साबित कर दिया, फ्यूचर के अल्फाज दिखा दे तो पेशगोई हो गई। वो मुअल्लम साहब मेरी बात सुने, इस तरह से घबरा के बात ना करें, हौसले और इत्मीनान से बात करें। मैंने आपको सुने ना, मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये इश्तिहार है, मजमुआ है कई बातों का, इसमें पेशगोई भी मौजूद है, दुआया अल्फाज भी मौजूद हैं। मौजूद नहीं है क्या? इसमें कोई पेशगोई मौजूद नहीं है। अमर नजीर साहब, इसमें पेशगोई मौजूद नहीं है। अमर नजीर साहब, एक मिनट भट्टी साहब आप प्लीज, आप इंटरफेयर ना करें, कोई लड़ नहीं रहे, हम एक एक फिक्रे का तबादला कर रहे हैं। आपकी नजर में इसमें पेशगोई मौजूद नहीं है? देखें कि जब आपने नहीं मौजूद है बिल्कुल भी। एक मिनट भट्टी साहब प्लीज मुझे उनसे बात करने दें। क्या इस इश्तिहार में पेशगोई मौजूद नहीं है? नहीं, कोई पेशगोई मौजूद नहीं है इसके अंदर। ये फिक्रा क्या है? इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ऐसे ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं तो आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा? ये क्या है? ये तो सुन्नतुल्लाह बयान कर रहे हैं आप। सुन्नतुल्लाह यही होती है। मिर्जा साहब खामोश, कोई बंदा ना रोला पा दो सारे। नहीं एक मिनट भट्टी साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था इन बंदों को नीचे उतार दें, ये बेचैन हो जाएंगे जब इनके सामने हकीकत आएगी। मिर्जा साहब ने ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। कबल अज वक्त खबर दे रहे हैं, इसी को पेशगोई कहते हैं। मुस्तकबिल के बारे में खबर जो होती है, पेशगोई क्या होती है? हाँ ये सुन, हाँ मैं बता रहा हूँ आप। एक चीज होती है सुन्नतुल्लाह के मुताबिक बात को बयान करना, ठीक है ना। जैसे कि आपके सनाउल्लाह मरकज़ी साहब ने भी ये बात कही थी कि मुफसिद और दगाबाजों की जिंदगियां दराज होती हैं, उनकी उम्रें लंबी होती हैं। क्या वो पेशगोई कर रहे थे? वो भी तो मुस्तकबिल की ही खबर बता रहे थे कि जो मुफसिद और दगाबाज होगा उसको लंबी उम्र मिलेगी। वो क्या पेशगोई कर रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे कि कुरान करीम से साबित है, अल्लाह ताला ने ये बात कुरान करीम के अंदर लिखी हुई है। इसी तरह से हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी सुन्नतुल्लाह के मुताबिक ये बात बयान की। मौलवी साहब अब मुझे मौका दे, गुजारिश सुने। ये सुन्नतुल्लाह के मुताबिक है या सुन्नत दजाल के मुताबिक है, लेकिन ये अल्फाज पेशगोई के हैं। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं तो मैं आपकी जिंदगी में हलाक हो जाऊंगा। ये पेशगोई नहीं तो क्या है? सुन ले, ये अधूरा टुकड़ा यहूदियों की तरह सुन तो ले। वो ला तक़रबुस सलात। इनको खामोश करवाएं भाई मुअल्लिम साहब, इनको नहीं खामोश करवा सकते, इनको नीचे उतार दें भट्टी साहब। कोई नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है यार? कोई नहीं बोल रहा, 150 बंदा देख रहा, कोई नहीं बोल रहा। कंधा बोल दिया ने भैया। यकीन करें कि मैं कसम खा कह सकता हूं कि मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी। यकीन करें बस। ठीक है, आपने नहीं सुनी, बाकी 150 बंदे ने सुनी है। मौलम साहब से सिर्फ मुझे इस फिक्र का जवाब दे दें। भाई मुझे भी आवाज नहीं है। एक मिनट, अगर मैं एक मिनट अमर नज़ीर साहब, एक तो जब मैं बोलने लगता हूँ, हालांकि मैं होस्ट हूँ, आप मुझे भी कहते चुप करो, ये हुक्म ना चलाएं। और इसी वजह से ही खुरम साहब से और आपसे वो तलख कलामी हुई है। ठीक है कि आप हुक्म चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं दोस्तों से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि बीच में ना बोले, तो क्योंकि फिर दूसरा बंदा भी कहता है कि जी वो देखो जी बोल रहा है। अभी जिस तरह किसी ने कोई बात भी नहीं की, अमर नज़ीर साहब कह रहे हैं कि ये देखें बोल रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं। भट्टी साहब छोड़ दें इस बात को, आगे बात बढ़ने दें। मुझे सिर्फ इस फिक्रे का जवाब मुअल्लिम साहब से लेने दें। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं तो मैं आपकी जिंदगी में हलाक हो जाऊंगा, इसका क्या मतलब होता है?
कबल अज वक्त खबर दी जा रही है कि नहीं खबर दी जा रही कि मैं आपकी जिंदगी में हलाक हो जाऊंगा? नहीं भाई अल्लामा साहब बात तो सुने। अल्लामा साहब देखें, अगर यहूदियों की तरह आप करेंगे जी ला तकरबुस सलात का मतलब बता दो, बस अगला पिछला छोड़ दो, समझ रहे हैं ना आप बात? इस तरह से तो बात फिर जाहिर नहीं होती है ना। अब देखें, मैंने आपके सनाउल्लाह मुरस्सरी साहब की एक इबारत पेश करी आपके सामने कि भाई आपके सनाउल्लाह मुरस्सरी साहब इश्तिहार आखिरी फैसला को पेश गोई करार दे रहे हैं। आपने कहा जी वो आगे पीछे का पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, वो पूरा सफा लगाए ना यहाँ। अब एक लाइन पढ़कर तो बात वाज़ेह नहीं होगी ना। कही थी कि नहीं कही थी आपने ये बात? मैं अब भी उस उसूल पर कायम हूं। एक मिनट रुके, बात कंप्लीट होने दे बात। मैंने आपके सामने पूरा सफा वो पेश किया और वो इबारत आपके सामने पढ़कर आपको सुनाई। इश्तिहार आखिरी फैसला में आपने ये बात कही कि ये चीज लिखी हुई है। मैंने इश्तिहार आखिरी फैसला पेश किया, अव्वल से लेकर आखिर तक मैंने मुकम्मल इश्तिहार आखिरी फैसला पढ़ा। अब आप ये कह रहे हैं जी ये जो लाइन लिखी हुई है, जो मिर्जा साहब ने बात कही है कि जो मुफ्सिद होता है ना और जो काजिब होता है वो सच्चे की जिंदगी में हलाक हो जाता है या मर जाए। देखो जी ये पेश गोई है। भाई पूरी बात पढ़े ना, कहने वाला क्या कह रहा है। उसने कोई इश्तिहार में एक लाइन ही तो नहीं लिखी। उन्होंने तो ये बात सुन्नतुल्लाह के मुताबिक कही है कि सुन्नतुल्लाह यही है। भाई मेरा मौलम साहब, ये आपके साथ झगड़ा नहीं है कि ये सुन्नतुल्लाह है या सुन्नत दज्जाल है। मेरा सवाल और है, मैं ये कहता हूं अगर ये फिक्रा पेश गोई नहीं है, ला तकरबुस सलात सिर्फ आधी बात है, तो इसके साथ अगला फिक्रा जोड़ के इसको पेश गोई से बाहर निकालें। कहीं देखो ये पेश गोई नहीं है, पढ़े अगला फिक्रा। मैं तो बता तो रहा हूं ना मैं आपको। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन्नतुल्लाह के मुआफिक कही है। जैसे कि आपके सनाउल्लाह मुरस्सरी ने सुन्नतुल्लाह के मुआफिक ये बात कही कि जो मुफ्सिद और दगाबाज होते हैं उनकी सुने कि उनकी उम्रें लंबी होती हैं। अब उन्होंने ये बात सुन्नतुल्लाह के मुआफिक कही है, इसका ये मतलब तो नहीं है सनाउल्लाह मुरस्सरी साहब पेश गोई कर रहे हैं। नहीं, वो पेश गोई नहीं कर रहे हैं, वो सुन्नतुल्लाह के मुआफिक एक बात को बयान कर रहे हैं कि सुन्नतुल्लाह के अंदर ये चीज सुन तो लें कि सुन्नतुल्लाह के अंदर ये चीज दाखिल है। जी वही बात आप दोहरा रहे हैं ना, कोई नई बात तो आप कर नहीं रहे। 3 दफा आपके पास अब जवाब है कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ ये सुन्नतुल्लाह के मुताबिक पेश गोई है या सुन्नतुल्लाह के खिलाफ पेश गोई है तो पेश गोई ना। ये है ही नहीं पेश गोई। साबिक की बात को बयान करना कोई पेश गोई नहीं होता है भाई। अच्छा जो बंदा ये कहता है साबिक की बिना पर एक बात को भट्टी साहब आप खामोश रहें। अगर मैं कहूँ एक मिनट आपकी आवाज बहुत ऊंची होती जा रही है, क्या खैर है अबर नजीर साहब? क्योंकि अब गाड़ी रुकी है, मैं बैठा हुआ हूँ ना, जब मैं बैठा हुआ होता हूँ तो गाड़ी फिर मैं आपको स्टूडेंट समझ के पढ़ा रहा हूँ। सुनिए बात, जब मैं आपको कहूंगा मौलम साहब कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं 2023 में ही मारा जाऊंगा, मैं आपकी जिंदगी में ही मार जाऊंगा, इसको पेशगोई कहते हैं या क्या कहते हैं? किस बिना पर? सवाल तो ये है ना, जिस भी बिना पर, मैं इल्हाम की बिना पर या किसी अखबार की बिना पर, जिस भी बिना पर मैं कहता हूँ मौलम साहब। भाई आमिर नजीर साहब फर्क होता है ना, सुने फर्क होता है ना। एक मैं बता रहा हूँ ना, एक चीज होता है कि आप बात सुन्नतुल्लाह के मुआफिक कह रहे हैं कि मसलन आपके नजदीक उसूल यही है कि जो मुफसिद होते हैं, दगाबाज होते हैं, अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, वो सच्चे की जिंदगी में मर जाते हैं। ठीक है ना, ये तो होती है सुन्नतुल्लाह के मुताबिक बात कहना। एक चीज ये होती है कि तुम लाजमी तौर पर ही जो है वो मेरी जिंदगी में हलाक हो जाओगे। ठीक है ना, ये मैं बतौर पेशगोई के बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला से खबर पाकर मैंने ये बात कही है। उसमें इंसान अल्लाह ताला की तरफ बात को मंसूब करता है कि मुझे मेरे खुदा ने ये बात बयान फरमाई है, तब मैं तुम्हें ये बात बयान कर रहा हूँ। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखबार हम तक पहुंचे हैं, अब जब हम उनको बयान करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने साबिक इल्म की बिना पर हम करते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई हम ये पेशगोई कर रहे हैं। इसी तरह से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है वो साबिक इल्म की बिना पर कही है कि ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि वो पेशगोई कर रहे हैं उस चीज की। अब मुझे जवाब देने दें। पेशगोई कभी साबिका इल्म की बिना पर होती है, कभी टेवे से होती है, रंग जड़ंगा होता है, पंचर लगाया होता है, लेकिन एक मिनट, हाँ बता दे मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिका इल्म की बिना पर कौन सी की है? जैसे वो उन्होंने कह दिया था, जैसे उसमें पादरी फंडक ने कह दिया था ना गलबा की पेशगोई को।
मैं आपकी बात में नहीं बोला, मुझे बात करने दें। कभी पेशगोई साहब का इल्म की बुनियाद पर होती है, कभी इंसान के जाती मुशाहिदात की बिना पर होती है, कभी इंसान के टेवे टच्चे पर होती है कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन पेशगोई ही रहती है। मिर्जा साहब ने ये पेशगोई की है कि अगर मैं झूठा हूं, मैं आपकी जिंदगी में ही मारा जाऊंगा। यही बात असेंबली में आपके खलीफा साहब से पूछी गई थी कि मिर्जा साहब ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा हाँ कही थी। तो फिर उन्होंने कहा मिर्जा साहब तो उनकी जिंदगी में फौत हो गए। क्या जवाब दिया था उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था उन्होंने कहा हाँ पेशगोई। उन्होंने कहा था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने दस्तखत नहीं किए थे। हाँ तो अजीब यार आदमी हो। बात कहाँ चल रही है, वहां असेंबली पर ले जाकर पहुंच गए। भाई यहाँ आपकी और मेरी बात हो रही है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने मेरी बात सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित इल्म की बिना पर कोई पेशगोई की है? मुझे बताइए ना।